Once again, good morning, guys. I welcome you all in my YouTube channel. I am basically dealing with presently the lectures of engineering graphics and on scales topic. Okay, so we have done many numericals on plane scales, on diagonal scales. Now today we will be dealing with comparative scale. It is very simple. So without wasting any time, let's move further. Three types of scale are left, isn't it? Comparative scales, vernier scales, and scale of chords. So we will take some examples of these scales also, and then we will move further. So let us see what is comparative scale. By name it is clear that in comparative scale we have two types of units. One is SI unit and another is British Standard Units. SI unit is which is SI unit? Which is having meter in its last, isn't it? Like centimeter, millimeter, kilometer, hectometer, decameter, decimeter, meter. All these things are SI units. And what are British units or English units? Those are inch, feet, yard, miles, furlong, all these things. You know all the conversions very well, okay? And if you don't know, then please go and watch my previous lectures on scales, because that conversion is very much essential, okay? So now, we have done both plane scale and diagonal scale. What we have seen that in both plane scale and diagonal scale, we can draw either of SI unit scale or of BS unit scale. We cannot merge both the units, isn't it? We cannot draw a scale of hectometer and miles. So this is the drawback of plane scales and diagonal scales. This problem has been overcome with the help of comparative scales. Here we can compare both the scales. We can draw SI unit and British unit scale in one single scale, that is called as comparative scale. Okay. So how? Let us see. So in comparative scale, let us take one example. All the examples which I am taking are of Andy Bhatt. Okay. From Andy Bhatt book you can see all these questions. These questions are not my generated. These are written in book. So draw a comparative scale of RF 1:1 lakh to show kilometers and hectometers. ये एक यूनिट दिया हुआ है and miles and furlongs. See, kilometer and hectometer is from SI unit and miles and furlong is from British unit. So you have to draw this scale just. Simple question. So let us see how we can draw. First we have to calculate the scale for SI unit. Okay. RF is common for all, either for SI unit or for British unit, because it is the RF for the particular question. Okay. So for kilometer and hectometer, let us calculate the SI unit scale first. So we know that the RF is this but this. Now we know that the minimum which unit we are having with our scale, since this is the ruler scale which we are having with us. So this unit is of SI unit, which is of centimeter, and in bottom side this is of British unit, which is of inches. So centimeter and inches are the units which we are having with us in this ruler scale. So we have to convert all the things in either in centimeter or in inches. Okay, and you can see here this is 1 inch and this 1 inch is equal to 2.54 centimeter, which I have already mentioned. So you can convert this inch also in centimeter. So now we know that when we are dealing with SI unit scale, then we have to convert everything in centimeter. And since it is clear that this is RF 1:1 lakh, denominator is greater, it means it is reducing scale. It is reducing scale means in bottom you are having the larger unit and in top you are having the smaller unit. Clear? So now what we can write, we know that we have to convert it in centimeter. So we can write that 1 centimeter on map represents 1 lakh centimeter on ground, isn't it? Because we have to cancel the units, then only we will get RF. The unit must be same. So here it can be written as 1 centimeter upon 1 lakh centimeter, isn't it? Centimeter gets cancelled, then we can get RF. We can write it like this. That's what I have written here. 1 centimeter on map is equal to 1 lakh centimeter on ground. Now what we have to do, we are having a scale of in ruler scale. Ruler scale, we are having the centimeter which is of 15 centimeter, isn't it? So maximum we can draw up to 15 centimeter. So let us write here 15 centimeter on map is equal to 15 lakh on ground, 15 lakh centimeter on ground. Now 15 centimeter on map is equal to 15 lakh centimeter. What we have to draw? We have to draw kilometer and hectometer. And which is greater? Kilometer is greater. So remember that you have to convert in the greater unit. Okay, kilometer is greater. So 15 lakh centimeter on ground is equal to 15 lakh centimeter. आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. You know that 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter.
we know this conversion factor, so what will be 1 centimeter? 1 upon 1 lakh kilometer. So we have converted this centimeter into kilometer. Divided by 1 lakh, we have divided by 1 lakh, then it is kilometer on ground. Now this cancels, so what we get, 15 centimeter on map is equal to 15 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. ये आपका स्केल आ गया ऐसा यूनिट वाले के लिए, किलोमीटर और हेक्टामीटर के लिए. मतलब आपको एक स्केल बनानी है ऐसा यूनिट की जो 15 किलोमीटर की होगी, लेकिन 15 सेंटीमीटर की आप बनाओगे, 15 सेंटीमीटर का बनाओगे जो 15 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो ये काम हो गया आपका किलोमीटर और हेक्टामीटर का. अब आते हैं माइल्स और फरलॉन्ग्स पे, ब्रिटिश यूनिट पे आते हैं. तो फिर वही सेम लॉजिक होगा, 1 इंच अपॉन 1 लाख इंच. ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 इंच अपॉन 1 लाख इंच. ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 लाख बचेगा आ रहा है, तो वही लिखते हैं 1 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 1 लाख इंच ऑन ग्राउंड. अब इंच में मैक्सिमम हमारे पास कहां तक है, 6 इंच है. देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इंच इज द मैक्सिमम. तो आप क्या लिखोगे, 6 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 6 इंच ऑन ग्राउंड. नाउ 6 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 6 इंच अपॉन, आपको बड़ा यूनिट कौन सा है, माइल्स एंड फरलॉन्ग्स में माइल्स ग्रेटर है. तो आपको क्या करना है, ये इंच है, इंच को माइल्स में कन्वर्ट करना है. मैं बताया था कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होना चाहिए. तो क्या होता है, देखो 1 माइल्स इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग. याद होना चाहिए आपको, है ना. 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 220 यार्ड्स. 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच. तो आपको अगर माइल्स को इंच में कन्वर्ट करना है या इंच को माइल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12. डिवाइड करोगे तो 1 माइल इज इक्वल टू 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12 इंच आ जाएगा. और 1 इंच इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12 माइल्स. एज सिंपल एज दैट. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 63360. मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 63360 आ जाएगा. तो 1 माइल्स इज इक्वल टू 63360 इंच होता है. तो 1 इंच इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, 1 माइल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 63360 इंच. तो 1 इंच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 63360 माइल्स. डिवाइड कर दिया, माइल्स में आ गए. इसको सॉल्व करोगे तो 9.46 माइल्स ऑन ग्राउंड आ जाएगा. 6 इंच ऑन मैप इज इक्वल टू 9.46 माइल्स ऑन ग्राउंड. लेकिन आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, 9.46 माइल्स ऑन ग्राउंड बराबर 6 इंच ऑन मैप. अब मैं इसको 1 माइल ऑन ग्राउंड बराबर 6 अपॉन 9.46 इंच ऑन मैप. 10 माइल्स ऑन ग्राउंड बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.3 माइल इंचेस ऑन मैप. 10 माइल्स ऑन ग्राउंड बराबर 6.3 इंचेस ऑन मैप. 10 माइल्स ऑन ग्राउंड बराबर 6.3 इंचेस ऑन मैप. उल्टा लिख लो, 6.3 इंचेस ऑन मैप बराबर 10 माइल्स ऑन ग्राउंड. एज इट इज आ गया ऐसे. जैसे यहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर में था, और ब्रिटिश वाले में हमको किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कौन सा स्केल है, ब्रिटिश वाले के लिए नीचे जो रहता है वो इंच रहता है, तो इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिए. तो बोलता है कि 15 सेंटीमीटर आपको बनाना है मैप में, जो 15 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा. और वैसे ही ब्रिटिश वाले के लिए आपको कितना बनाना है, 6.3 इंच को बनाना है मैप पे, जो 10 माइल्स को रिप्रेजेंट करेगा. सबसे पहले इंच वाली स्केल को ड्रॉ करना, क्योंकि इसको ड्रॉ करना आसान होता है. ठीक है, तो पहले क्या बोला, किलोमीटर हेक्टोमीटर, और बाद में माइल्स फरलॉन्ग्स. तो ऊपर हमको किलोमीटर और हेक्टोमीटर का स्केल बनाना पड़ेगा. तो नीचे से चालू करो, माइल्स और फरलॉन्ग्स नीचे है, तो ब्रिटिश वाले को पहले बनाना है. ठीक है, तो आपको कितना बनाना है, 6.3 इंच बनाना है. अब देखो ये स्केल में ये पूरा 6 होता है, इतना होता है, और 0.3 आपको जोड़ना है. तो देखो ये 1 इंच है, तो इसके बीच वाला क्या हो जाएगा, 0.5 इंच. आपको 0.3 चाहिए है ना, बीच वाला 0.5 हो गया, उसके बीच वाला कितना हो गया, 0.25. तो देखो 0.25 और उसके बाद देखो 0.5 आप ले लोगे तो 0.3 आ जाएगा. तो ये 6 पूरा लोगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप लोगे तो 0.3 आ जाएगा. तो आपने क्या किया, एक लाइन बना लिया 6.3 इंच का. या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कन्वर्ट कर लो. आपको पता है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है. तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कन्वर्ट कर लो इंच को सेंटीमीटर में. तो 6.3 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 6.3 इंटू 2.54, 13 सेंटीमीटर समथिंग आएगा. 13 नहीं, ज्यादा ही आएगा. तो उतना आप इंच बना लेना. क्लियर. तो ये आप इंच का आपको मिल जाएगा, कितना सेंटीमीटर आ गया आप बना लोगे. तो अब जैसे आपने ये लाइन बना लिया, ये लाइन आपका बन गया 6.3 इंचेस का. अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो आपके पास लाना कहां तक है, मतलब आपने जो 6.3 बनाया ये बेसिकली कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 माइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको 10 माइल बनाना है इसमें.
तो मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक एक माइल शो करूंगा। उससे अच्छा क्या करता हूं, 10 का मल्टीपल्स क्या है मेरे पास, ये सब आप किए हो प्लेन और कंपैरेटिव में, क्या करूं उसको 5 into 2 कर लेता हूं, 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक एक डिवीजन 2-2 माइल्स का होगा। तो मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक एक डिवीजन कितने कितने माइल्स का है, 2 माइल्स का, एक छोड़ के लिखते हैं अपन, तो 0 लिख दिया, फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यहां लिख दिया माइल्स, यहां लिख दिया फरलॉन्ग्स। अब देखो माइल्स हो गया, फरलॉन्ग्स हो गया, यहां आपको फरलॉन्ग बनाना है। अब आपने कहां तक लाया, 8 माइल्स तक आप तो ला दिए, लेकिन आपको लाना कहां तक है, 10 माइल्स तक, मतलब बचा कितना, 2 माइल्स, 2 माइल्स बचा। अब 2 माइल्स को आप फरलॉन्ग में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि 1 माइल्स इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है, तो 2 माइल्स बचा हुआ है इज इक्वल टू कितना फरलॉन्ग हो जाएगा, 16 फरलॉन्ग। तो आपको 16 फरलॉन्ग बनाना है यहाँ पे। तो आप सिंपल है, 16 को मल्टीपल 16 पार्ट में डिवाइड करो, बहुत टाइम लगेगा, 4 into 4 कर लो, 4 पार्ट में डिवाइड करो, एक एक डिवीजन 4-4 फरलॉन्ग को दर्शाएगा। तो मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और 4-4 का दर्शा दिया, देखो इधर 4 इधर 8 इधर 12 इधर 16 फरलॉन्ग आ गया। 16 फरलॉन्ग मतलब 2 माइल्स और आ गया, 2 माइल्स ही बचा था ना, 8 माइल्स तो आप ला चुके हो, 2 माइल्स और लाना, 10 माइल्स हो गया। तो ये आपका स्केल बन गया। अब ध्यान रखना, जब कभी आप कंपैरेटिव स्केल बनाओगे तो जो जीरो है ना पहला वाला लाइन, ये दोनों स्केल का मैच होना चाहिए, ठीक है, ये जीरो जो है ये दोनों स्केल का मैच होना चाहिए। तो अब ये जीरो को मैच करने के लिए आप क्या करोगे, यहां से ये जीरो मिला है आपको, इसी में ऊपर वाले का जीरो भी होना चाहिए, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसा बना दो, ये वर्टिकल लाइन बना दी, इसी में आपको जीरो लेना है, जीरो मार्क कर देना। और यहां से आपको एक लाइन बनानी है जो कितना लंबा होगा, 15 सेंटीमीटर का, जो दर्शाएगा 15 किलोमीटर को। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ आपको 15 किलोमीटर दर्शाना है यहाँ पे, क्यों, बड़ा यूनिट किलोमीटर है, 15 किलोमीटर आप दर्शाओगे। तो 15 किलोमीटर दर्शाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, आप देखो 15 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो मैं 5 into 3 भी कर सकता हूँ, 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक एक डिवीजन कितना कितने का होगा, 3-3 किलोमीटर का, 3-3 किलोमीटर का होगा। तो इसका मतलब क्या है, 15 सेंटीमीटर की लाइन है आपके पास, देखिए 15 सेंटीमीटर, एक एक डिवीजन कितने कितने का होगा, 3-3 सेंटीमीटर का बना लेना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का एक डिवीजन होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर का एक डिवीजन होगा, एज सिंपल एज दैट। तो 3-3 बनाना, तो आप क्या करोगे, स्केल कैसा रखोगे, और ये जीरो पे रख करके पहले इधर से 3 सेंटीमीटर माप लोगे, एक पॉइंट आ गया, फिर जीरो के बाद इधर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 डिवीजन हो गए। और जीरो को नाम देकर के फिर आपको क्या करना है, 3-3 का डिवीजन लेना है, तो 3 6 9 12 आ गया। आपको लाना कहां तक था, इधर आप बड़ा यूनिट लिख दो किलोमीटर, और इधर छोटा यूनिट लिख दो हेक्टोमीटर। आपको लाना था 15 किलोमीटर तक, आपने लाया 12 किलोमीटर, बचा कितना, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर होता है, तो 3 किलोमीटर बराबर 30 हेक्टामीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 30 हेक्टामीटर दर्शाना है, तो आप 30 पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, और एक एक डिवीजन 10-10 हेक्टामीटर का होगा। देखिए मैंने इस पहले डिवीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको लिख दिया 10 20, इसको 30, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। फिर इसको ऊपर बढ़ाया, ये लाइन बना दिया। अब देखो यहाँ पे बीच, ये आप ऊपर कितना ही बढ़ा सकते हो, इसको ऊपर कितना ही बढ़ा सकते हो, जितना इसको बढ़ाओगे उतना इसको बढ़ाना, और स्केल बना देना। बीच में एक लाइन खींचना पड़ता है, ऐसा यहाँ भी बीच में एक लाइन खींचना पड़ता है, ये वर्टिकल के बीच में, और ऐसा साइमल्टेनियसली ऑल्टरनेटिवली आप हैचिंग कर दोगे दोनों में, जैसा मैंने लिखा है, यहाँ माइल्स, यहाँ फरलॉन्ग, यहाँ किलोमीटर, यहाँ हेक्टोमीटर लिखोगे, ऊपर आरएफ लिख दोगे, और ये जितना भी कैलकुलेशन है सब दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। तो आपने एक ही स्केल में देखो दोनों दर्शा दिया, ऐसा यूनिट भी दर्शा दिया और ब्रिटिश यूनिट भी दर्शा दिया, इंग्लिश यूनिट भी दर्शा दिया, कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये करना है आपको, बस ये ध्यान देना है कि जीरो से जीरो दोनों स्केल का मिलना चाहिए, ये सेम एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बोला कि आप अगर इसको पहले बनाओगे तो यहाँ जीरो से आप 6.3 इंच बनाने में आपको मुश्किल होता है, क्योंकि डेसिमल था, यहाँ डेसिमल नहीं आया ना, तो इसलिए पहले आप इंच वाले को बना लो, मतलब ब्रिटिश वाले यूनिट का स्केल को पहले बना लो, और उसके बाद आप उसको ऊपर बढ़ा के यहाँ पे ऐसा यूनिट वाले को इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको 15 सेंटीमीटर बनाना है, एक एक डिवीजन 3-3 का है, तो आप जीरो से यहाँ 3 सेंटीमीटर आराम से ले सकते हो, फिर यहाँ 3 ले लो, 2 हो गया, फिर यहाँ 3 ले लो, 3 हो गया, फिर यहाँ 3 ले लो, 4 हो गया, फिर यहाँ 3 ले लो, 5 हो गया, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया अपने आप, क्लियर। तो इतना सिंपल है, देखिए ऐसा आपको बनाना है। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिव स्केल आपको समझ में आ गया होगा, इसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। अब अगले वीडियो में और 1-2 क्वेश्चंस है एनडी वर्ड में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपैरेटिव स्केल का, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्ट करना है बड़े यूनिट में, यहाँ किलोमीटर था तो इसलिए मैंने इसको किलोमीटर में लाया,
यहाँ पे क्या था, माइल्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको माइल्स मिलाया। और जो कन्वर्ट करके लाओगे उसके पीछे होल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ये डेसिमल में आ गया, मैंने इसलिए फिर ये गणित कराया यहाँ पे ताकि ये डेसिमल को हटा सकूं, ठीक है ना, ये डेसिमल नहीं लेना, तो ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया मेरे ख्याल से, इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये करना है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक स्केल मिल जाएगा सेंटीमीटर का बनाने का और इंचेस का बनाने का, क्योंकि यही दो स्केल है आपके पास, यहाँ सेंटीमीटर है नीचे इंच है, तो आपको एसआई वाले को सेंटीमीटर में लाना है और ब्रिटिश वाले को इंच में लाना है, और उतना लंबा स्केल होगा। कितना क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके क्वेश्चंस को बना लो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे वर्नियर स्केल कैसे बनाते हैं, ठीक है, थैंक यू।